Assalamu alaikum. This is Qudsiya Fatima, your course facilitator. Course name is Psychology and Guidance in Education, EDUC 3157. Today we will discuss dynamic factors on career planning. Let's start our topic with the definition of career and career choice. Career is the sequence of employment related positions, roles, activities, and experiences encountered by a person. यानी ऐसे ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंसेस जो कि किसी इंडिविजुअल की वर्किंग लाइफ को शेप करते हैं। और करियर चॉइस के बारे में हम सब जानते हैं कि करियर चॉइस क्या है। एक करियर चॉइस इंसान की ज़िंदगी को शेप करती है, उसकी लाइफ में उसे गाइडेंस देती है और सोसाइटी में उसके लिए एक प्लेस बनाती है। क्योंकि एक इंसान का जो प्रोफेशन है वो एक तो उसके लिए इनकम जनरेटिंग की कॉज है, दूसरा उसको एक सेटिस्फेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है और उसे माशरे में एक रिस्पेक्ट और सक्सेस देता है। When we talk about career counseling, it is a method of identifying practical solution to a problem. The purpose of career counseling is to get the right job. It suits the way you like to do things and reflects who are you. It lets you to use your strengths and nourishes the important aspects of your personality. There are three components of career counseling: career planning, career development, career management. Let's discuss career planning. Career planning is the process by which one selects career goals and the path to achieve these goals. It means helping the employees to plan their career in terms of their capacities within organizational needs. स्टूडेंट्स के लिए राइट करियर को चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हैव टू टेक इनटू अकाउंट मैनी थिंग्स व्हेन चूज ए करियर। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि करियर सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें स्टूडेंट का डिसीजन जो है वो बहुत से फैक्टर्स को देख के हो रहा होता है। इसमें पेरेंट्स भी आ सकते हैं, रिलीजन भी आ सकता है, इसके अलावा हमारे रिलेटिव्स आ सकते हैं या पीयर आ सकते हैं। We can say that career planning is a long-term goal. It is the planning of one's life work that gives meaning and satisfaction over the lifespan. Career planning involves exploring alternatives, aiming to maximize future success and satisfaction. So, here I discussed three things. First one, long-term goal. It's a long-term goal. Second one, it gives meaning and satisfaction. And third one, exploring alternatives. इन तीन चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो एक बनती है नेचर ऑफ करियर प्लानिंग। I have written here for you the nature of career exploration, which I have already discussed. आजकल के अगर हम दौर की बात करें तो इसमें भी लोग बहुत एंक्शस हैं about how COVID-19 could affect their career opportunities. बहुत से लोगों के करियर में एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, लोगों के बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और जो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो भी पूरी तरह मुतासिर हो रही है। ऐसी सूरत में जो करियर प्लानिंग जो है वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज बनता जा रहा है। नेक्स्ट इज करियर डेवलपमेंट. Career development is a formal approach used by organizations to ensure that people with proper qualifications and experience are available when needed. It includes organizational development and personal development. Organizational development includes how individuals manage their careers within and between organizations. और पर्सनल डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, एजुकेशनल, फिजिकल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो शामिल हैं।
जो कि किसी भी जॉब की जो नेचर है और जो सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कंटेक्चुअल फैक्टर्स करियर को शेप करते हैं। थर्ड, career management. Career management is an ongoing process of preparing, implementing, and monitoring career plans. These career plans are undertaken by the individual alone or within the organizational career systems. In process of career development, self-assessment is very important. So self-assessment plays a role in career planning and development. सेल्फ असेसमेंट क्या है? एक इंडिविजुअल को पता हो जो कोई करियर सेलेक्ट करने जा रहा है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्हाट इज़ द एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़, उसके नज़दीक उसकी स्किल्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उसको खुद पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सेल्फ असेसमेंट होती है उसके बाद फिर हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। एक इंडिविजुअल को खुद पहले पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर कौन सी स्किल्स हैं जिसको मैं यूज़ करते हुए कोई करियर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चनियर होते हैं या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है कि वो अपने करियर को सेलेक्ट कर सके। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये बनना है, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊंगा तो मैंने ये वाला प्रोफेशन जो है ये अडॉप्ट करना है। तो इस चीज़ को, इस एम को जहन में रखते हुए वो अपना जो एकेडमिक लाइफ है उसको गुजारते हैं। तो उनका एम एक ही होता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये बनना है। कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो उनको किसी न किसी वजह से अपना जो उन्होंने ऐसा प्रोफेशन जो सोचा होता है उसमें कोई तब्दीली करनी पड़ जाती है, यानी जो प्रोफेशन उन्होंने सोचा होता है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो कोई दूसरा उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका कोई ख़ास एम नहीं होता कि हम ये बनेंगे, वो देखते हैं कि हालात के मुताबिक, उस वक्त के मुताबिक जो भी अच्छा प्रोफेशन होगा, जो अच्छी सैलरी दे रहा होगा, जिससे सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलेगी, तो हम उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन सबके माइंड में एक प्रोसेस ज़रूर चल रहा होता है करियर डेवलपमेंट का, कि मैं जब अपना करियर सेलेक्ट करूँगा तो मेरा करियर ऐसा होना चाहिए। इसी तरह लोग ऐसा करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर रहा हो, उनको सोशल बेनिफिट्स भी दे रहा हो। मेन सोसाइटी में जो उनका मकाम है, द प्लेस इन सोसाइटी ड्यू टू द प्रोफेशन दे अडॉप्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है और ये चीज़ सैलरी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग कम सैलरी पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सोशल अपना जो स्टेटस है उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एकेडमिक एबिलिटी, मैनी स्टूडेंट्स चूज द सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटी। अगर स्टूडेंट्स को कहा जाए कि कोई सिलेक्ट चूज़ करें तो वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी क्या है, कि हम कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ सकते हैं। अपनी एबिलिटी के मुताबिक वो सब्जेक्ट सिलेक्शन पहले से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनको गाइड करती है, जो कि उनको हेल्प देती है फर्दर करियर सिलेक्शन में भी। इसी तरह हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती, या ये कह लें कि उनकी ज़्यादा इस तरह की हैबिट नहीं होती कि वो टफ सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकें या ऐसे सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट करें जो सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स फिर दूसरी फील्ड्स की तरफ चले जाते हैं जहाँ वो कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, और ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा उनको कम जो है वो टाइम ले, मतलब कि वो डिफ़िकल्ट काम की निस्बत आसान काम करना पसंद करते हैं। दिस थिंग अफेक्ट्स देयर करियर पाथ्स ऑफ लाइफ। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट भी हमने देखे हैं जो काम तो करना चाहते हैं, वो
हैवी काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते कि या तो उनके पास टाइम नहीं होता या उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें जिसकी वैल्यू हो, हम ऐसे सब्जेक्ट रखें जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हों, लेकिन वो उसको करने के काबिल नहीं होते किसी वजह से, जिसकी वजह से वो फिर वो टीचर्स से भी हेल्प लेते हैं, वो ट्यूटरिंग भी उनकी होती है, और जो है वो गाइडेंस भी लेते हैं लोगों से, और उनको टीचर एक्स्ट्रा काम देकर भी उनको उसके लिए फिट करता है. It means students are given very opportunities to excel and work in their field. तो ये चीज़ एप्टीट्यूड को भी ज़ाहिर करती है. यानी एप्टीट्यूड तो बहुत अर्ली क्लासेस से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, जहाँ स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट शो करता है किसी ख़ास सब्जेक्ट में, किसी ख़ास टॉपिक में, कोई ख़ास उसका एक जो एंगल बनता है, जिसकी वजह से टीचर ये जज करता है कि ये इस स्टूडेंट के लिए ये वाली फील्ड ज़्यादा बेहतर है. तो कुछ स्टूडेंट साइंस में जाना पसंद करते हैं, कुछ आर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम साइंस में जाएं या आर्ट्स में. तो ये चीज़ें जो हैं वो एप्टीट्यूड की तरफ जो है वो इशारा करती हैं. अब एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड भी हो सकता है, मैथ एप्टीट्यूड भी हो सकता है, म्यूजिकल एप्टीट्यूड हो सकता है, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी एप्टीट्यूड हो सकता है, नर्सिंग और एनी अदर, बैंकिंग, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस, यानी जो एप्टीट्यूड है वो किसी भी जो है वो तरफ जा सकता है. So we can say that aptitude may be considered as a special ability besides the general intelligence ability. कि एप्टीट्यूड जो है वो इंटेलिजेंस से अलग चीज़ है. इंटेलिजेंस जितनी भी है एक इंडिविजुअल की, लेकिन उसका एप्टीट्यूड कोई भी हो सकता है. Aptitude depends upon two things. First one heredity and second one environment. तो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं एबिलिटी और एप्टीट्यूड को. तो एबिलिटी जो है वो प्रेजेंट कंडीशन है, एट दिस टाइम व्हाट आई एम एबल टू डू, बट एप्टीट्यूड इज फ्यूचर प्रेफरेंस, कि व्हाट आई कैन डू इन फ्यूचर. पर्सनालिटी. Personality is another important factor in career choice. We have seen many people quiet and passive, whereas others are loud and aggressive. So, what is personality? So, personality is how individual reacts and interact with others. It is most often described in terms of measurement traits that a person exhibits. एक इंडिविजुअल रिएक्ट कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, और इंटरेक्ट कैसे करता है दूसरों के साथ, ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है. इसी तरह फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स. इसी तरह स्टूडेंट्स के जो फैमिली में रोल मॉडल्स होते हैं, जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो रोल मॉडल्स, उन रोल मॉडल्स को देखते हुए भी वो अपनी करियर जो है वो चॉइस में मदद लेते हैं. In addition to personality, skills and values are also important to consider in the career development process. Personal values play an important role in career decisions. Values are qualities considered to be most important guiding principles that help set priorities in the career. Barriers to career development. Here is a list of some barriers to career development. First one is lack of time to plan their careers. People do not invest time in planning their career. Secondly, lack to undertake training and development, कि वो कुछ ऐसी ट्रेनिंग नहीं लेते, ऐसा कोई उनके पास कोई ऐसा लाया अमल नहीं होता जिसकी वजह से वो अपना करियर सेलेक्ट कर सकें, और इनको फिर मसाइल होते हैं करियर डेवलपमेंट में. Lack of leadership support for career management. Sometimes people don't have leadership support that how to manage their career.
their focus is short term. Instead of having long term focus, they prefer short term focus. Lack of career opportunities within the organization for employees, and sometimes within one organization people find limited opportunities for grooming further, for further employment, for further promotion. Goals to achieve in guidance. So we have already discussed these things. Exploring self, first of all determine uh, yourself, or self, it is related to self assessment. Determining values, how we value the things. Setting goals, determine what is your goal you want to achieve. Explore the world of work and improve your efficiency to do variety of work. Building relationships as well as accepting responsibility for the future. So keeping in mind the future demands, so individuals have to set their priorities. These are assessment questions. Which factors do you think are most important while selecting a career? And second question is, what are the barriers in career planning and development? For any questions and queries, you can email me at kutsia.fatima@ue.edu.pk. Thank you for listening.